What generally happens inside cybersecurity is like there are two fields, right? Red teaming and blue teaming. जो मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेन्स है इंडिया के, उन्हें डेवलपमेंट का तो नॉलेज है बट सिक्योर डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडस्ट्री बिगिनर्स के लिए है ही नहीं. क्या साइबर सिक्योरिटी मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में भी आता है कि जैसे हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक एप्पल फ़ोन है, सो उन दोनों फ़ोन्स में काफ़ी सारे कंपैरिजन्स चलते रहते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा सिक्योर है. एआई को ऐसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी के लिए. तो थोड़ा पास्ट में चलते हैं. पास्ट में मशीन रेवोल्यूशन आया था. मशीन रेवोल्यूशन बोल रहा था कि ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं उनकी जॉब चली जाएगी मशीन्स की वजह से. आपको ये जितने भी फ्रॉड कॉल्स हैं इन पे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है. अगर कॉल उठाते भी हैं तो कोई भी आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देती है कि किसी का कॉल उठाने से ऐसा लेट्स से कि मेरे पास एक रजिस्टर्ड नंबर है जो कि मेरे बैंक से भी रजिस्टर्ड है, तो क्या सिर्फ कॉल पिक करने से बैलेंस जा सकता है? Hello, my college friends. So this is Saurabh again, and today we have a cybersecurity professional. He's a working professional, certified professional. He's currently working on major tools. So today, my friends, I tried my best to shoot out the questions, some general questions and some of the questions जो कि कॉलेज टाइम पर हमारे साथ हमारे माइंड में घूमते हैं, रिलेटेड टू द प्रोफाइल, रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स जो अभी रन कर रहे हैं. सो आई एडेड देम ऑल एंड आई ट्राइड टू गेट दोज आंसर्स. Just let me know if you have more questions over there. Just comment in our comment box, and please subscribe our channel so that we can continue to ask and invite some of the good working professionals for us. So let's start, guys. Okay, so hello viewers, this is Saurabh from Let Me Study again. Today, like as we are proceeding ahead for Digital India, there are two topics which is coming up into the picture, that is cybersecurity and AI very much. So today again, हमारे पास आज एक he is a working certified professional and he is really having a good experience into the same domain. So we have Jayant here. Hi Jayant, how are you? Hey, I'm doing great. How about you? Good. So Jayant, first of all, let's start with your experience and little bit introduction to our viewers, and then I will shoot out my questions, which is related, जो कि काफ़ी सारे college students और काफ़ी सारे लोगों के mind में अभी आते हैं related to cyber security and AI, you know. Over to you. This is Jayant Kamble, and basically I'm a tech nerd, and I am currently working as a threat analyst. And inside cybersecurity, basically two streams are there: blue teaming and red teaming. Basically, blue teaming is responsible for defending. So you can assume me as a security guard. So what generally happens inside cybersecurity is like there are two fields, right? Red teaming and blue teaming. Yes. Here inside blue teaming, we are defending against the attacks that we are seeing, and I am currently working for an organization which has various customers, and I am responsible for checking their state, whether their state is secure or not, whether they are seeing any incidents or not. So there's a field called incident response. So incident response is the field wherein you will directly contact, you'll get a chance to meet with the attacker or a hacker. So like this is my background. So initially it started with development, and then I switched to cyber security. Okay, इससे एक मेरा question और बन गया, which I will keep it for my next part. And so Jayant, जनरली अभी ऐसा देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट से और काफ़ी डिफरेंट डोमेन से सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी की तरफ एकदम अट्रैक्ट हो रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं. आपने भी किया अपने प्रोफाइल में. सो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं? So major factor is your brain is continuously engaged in cybersecurity. So see, जो मेजर मूविंग इंडस्ट्री है इस मूवमेंट में वो है डेवलपमेंट,
राइट। Right. सभी कॉलेजेस में भी यही हो रहा है कि सबको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पढ़ाई कराई जा रही है एंड उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाया जा रहा है। चीज क्या हो रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बन जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे उन्हें जो जो मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेन्स है इंडिया के, उन्हें डेवलपमेंट का तो नॉलेज है बट सिक्योर डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है। आई मीन व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली हम एकदम रूट में जाएं, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ कोड है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड एंड हु राइट्स दिस पीस ऑफ कोड? ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हैबिचुअल टू मेक मिस्टेक्स। वो गलतियां करते ही हैं और व्हाइल राइटिंग द कोड्स हमें गलतियां मिलती हैं और एज एन अटैकर वो गलती के थ्रू ही हैकर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं इसका। आपका घर है, ठीक है, उस घर के अंदर वेरियस फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आपके घर में अच्छा लॉक नहीं है तो कोई भी आपके अंदर घर के अंदर घुस सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिंपल। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट योर हाउस, and if that software is having some vulnerability, any attacker can exploit that vulnerability to gain access inside that software, जो बेसिकली आपका घर है। सो सिंपल क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों सारे स्टूडेंट्स या मतलब प्रोफेशनल्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रेन एंगेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडस्ट्री बिगिनर्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्रूशियल काम है और कोई भी इजीली हैकर्स के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बेसिकली अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको ट्रेन होना पड़ेगा ताकि आप लड़ सके सामने वाली टीम से, सामने वाली आर्मी से। सो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये बूमिंग इंडस्ट्री है। ब्रेन को हमेशा क्या बोलते हैं, चैलेंज किया जाता है, एंगेज किया जाता है। एंड फर्दर अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज्यादा शार्प माइंड्स है, और शार्प माइंड होने की वजह से, और हार्ड वर्किंग है, बेसिकली हार्ड वर्किंग और शार्प माइंड्स है, जिसकी वजह से सारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो चाहते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री में जाएं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को चैलेंज कर सके, कहीं ना कहीं अपने करियर में ग्रो कर सके, क्योंकि रिपीटेटिव चीज होती जा रही है। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या साइबर सिक्योरिटी मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में भी आता है? एक ये भी पॉइंट हो सकता है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली इट्स लाइक जो आईटी इंडस्ट्री में होता है, ऐसा कहते हैं डेवलपर इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। एक पुराना बना हुआ है कि developers are like most of the time they are just coding and they do not have fun in their life, right? अगर साइबर सिक्योरिटी की जॉब देखें एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एज वेल, क्या ऐसा एक्चुअली में है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसके लिए। जो भी काम रिपीटेटिव है वो उनको कम ही सैलरी मिलेगी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अगर हमें कोई जॉब मिली जिसमें हमें कोई भी बोरा है उसको साइड में कहीं पे उठा के रखना, ये भी रिपीटेटिव काम है, आपका ब्रेन एंगेज नहीं हो रहा है, चैलेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको ज्यादा पे नहीं मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बता दिया गया है कि आपको ऐसे कोडिंग करनी है, इससे फ्रेमवर्क बन जाएगा, ऐसे कोडिंग करनी है, ऐसा बैकएंड बन जाएगा, ये एपीआई है, इससे कनेक्ट हो जाएगा, बस आपका ये काम हो गया, आपका प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन गया। साथ में साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में ये होता है कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर बना है इसमें आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, एक कोई लूपहोल ढूंढना है, ऐसा कोई गेट ढूंढना है जिससे आप अंदर एंटर कर सके, फर्दर उसको सिक्योर करना है। तो ये काफी चैलेंजिंग होता है, और जहाँ पे चैलेंज ज्यादा है वहाँ पे पे हाई हो गई। तो साइबर सिक्योरिटी सच में वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है। ओके, सो अगर हम एक कॉलेज बॉय जो कि अभी पास आउट के पर्सपेक्टिव से देखें, सो वैसे तो हैकर इटसेल्फ इज़ अ फैसिनेटिंग टर्म। जब भी आईटी से कोई निकल रहा होता है तो डेवलपर अगर वो डेवलपमेंट में है, सो ही ऑलवेज वांट टू बी अ हैकर। वो बात अलग है कि उसकी डीप नॉलेज नहीं होती है, बट इट्स सो फैसिनेटिंग टर्म। सो अगर उसे साइबर सिक्योरिटी अल्टीमेटली एक इंट्रोड्यूस हो गया कि साइबर सिक्योरिटी में जाके यू कैन गो फॉर अ एथिकल हैकिंग एंड यू कैन कॉल योरसेल्फ अ हैकर, अल्टीमेटली यू आर सेविंग दोज थिंग्स एंड एथिकली हैकिंग एक्चुअली टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू योर डेटा, राइट? सो अगर उसको स्टेप्स लेने हैं, सो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस उसकी हेल्प कर सकते हैं उस जॉब प्रोफाइल को अचीव करने के लिए, और क्या कोई एडवांस स्टडीज़ भी हैं विद इन दैट डोमेन
जो उसको हेल्प कर सकते हैं उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए, इफ़ ही इज़ ऑलरेडी हैविंग अ बेसिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस लाइक आफ्टर कॉलेज या कुछ ऐसा करने के बाद, लाइक he want to achieve? Yes. So, see, first of all, as I've already mentioned कि two fields है, red teaming and blue teaming. और भी fields है, but majorly दो है, red teaming और blue teaming. What these fields are? First, red teaming means जहाँ पे आपको attack करने मिलता है, आप attack करके ढूंढते हैं जितनी भी vulnerabilities है, जो भी loop holes है. अगर आपको attacking में मजा आता है, अगर आपको किसी भी चीज को तोड़ने में मजा आता है, ब्रेक करने में मजा आता है कोड को, तो आपके लिए रेड टीमिंग है. फर्दर ब्लू टीमिंग वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप सिक्योर करते हैं, जो भी लूप होल्स हैं उन्हें आप सिक्योर करेंगे. बहुत सारे टूल्स है जैसे फायरवॉल है या आईपीएस आईडीएस है, इसको हम चलाना सीखते हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क को स्टॉप करते हैं, वहीं पे अटैकर को रोक देते हैं. ठीक है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कोई भी स्टूडेंट कैसे आ सकता है इस इंडस्ट्री में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको अटैक करने में मजा आता है या डिफेंड करने में मजा आता है. ठीक है, फर्दर कोई भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक प्रॉपर रास्ता होता है उसका, और उस रास्ते में जाने के लिए आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए. वो नॉलेज स्टार्ट होता है आपकी स्कूल की स्टडीज से. स्कूल की स्टडीज में 11th-12th में एक अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है C++ जावा पढ़ने का. वहाँ से आपको एक नॉलेज मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बहुत अच्छे से कीजिए उसे. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है नेटवर्किंग. अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है, जैसे नेटवर्क कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो कैसे काम करते हैं, उसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप फर्दर उसके ऊपर जितने भी ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन बिल्ड साइबर सिक्योरिटी नॉलेज. फर्दर कमिंग बैक टू लेट्स से अगर मैं इस टाइम पे अगर मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती तो मैं कैसे करता. मैं सबसे पहले अपना नेटवर्किंग स्ट्रांग करता. मैं कोई भी एक लैंग्वेज समझता ताकि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है. उसके बाद मैं एक राउट पकड़ता जिसमें मुझे समझ में आता कि मुझे अटैकिंग करनी है या डिफेंड करना है. अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट आता है अटैकिंग में तो एक सर्टिफिकेशन है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग. यस, सो इस सर्टिफिकेट की हेल्प से आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी क्या क्या अटैक्स होते हैं, क्या क्या फर्दर टैक्टिक्स होते हैं जो अटैकर्स यूज करते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं. जैसे एक मेटास्प्लॉइट है, वायर शार्क है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप अटैक करते हैं. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है काली लिनक्स, जिसकी हेल्प से आप सारे टूल्स यूज कर सकते हैं. बट अगर आपको डिफेंडिंग साइड में जाना है, आपको सिक्योर करना अच्छा लगता है, तो आपके पास सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन है जो कि सिक्योरिटी प्लस. और आई एम रियली थैंकफुल कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सारी सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग देते हैं. सो सिक्योरिटी प्लस बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है. अगर मैं होता तो मैं सिक्योरिटी प्लस ही करता क्योंकि मुझे डिफेंडिंग साइड में ही रहना अच्छा लगता है. सिक्योरिटी प्लस बेस्ट सर्टिफिकेशन है. इससे ये जो दो सर्टिफिकेशन है CEH एंड सिक्योरिटी प्लस, ये आपको बेसिक नॉलेज दे देगा साइबर सिक्योरिटी की. बेसिकली आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है. नेटवर्किंग के बाद आपकी कोडिंग लैंग्वेज, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में अच्छा होना पड़ेगा. साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी विंडोज एज वेल एज लिनक्स. फिर उसके बाद आपके सर्टिफिकेशंस जो है CEH या सिक्योरिटी प्लस. अभी मार्केट में और भी आ रहे हैं, जैसे EJPT है जो कि जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला है. वो बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, प्रैक्टिकल है, और वो भी आपको एक रेड टीमिंग में अगर जाना है तो वो भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा. वैसे ही सिक्योरिटी प्लस अगर डिफेंडिंग साइड में जाना है तो सिक्योरिटी प्लस तो बेस्ट है. उससे मतलब उसके वो कर लिया तो बेस्ट है. ओके, सो जयंत, कुछ जॉब प्रोफाइल्स भी आप मेरे को बताओ सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स, लाइक लेट्स से पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, पेन टेस्टिंग जॉब्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होती लोगों को कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. और भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जो न्यू अभी मतलब अगर इंडियन IT इंडस्ट्री में देखें तो बहुत न्यू आई हैं, और वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत न्यू टर्म्स हैं कि ये कौन सी जॉब प्रोफाइल है. बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पता होती है पर लेकिन जो थोड़ा सा न्यू टर्म्स हैं वो उनको नहीं पता होता. सो दैट इट वुड बी गुड इफ़ यू कैन इंक्लूड दोज जॉब प्रोफाइल्स ऑल्सो. सो कौन सी टीम में कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं? सो
nowadays what is happening, every organization is shifting towards cloud. So जैसा आपने बोला कि अभी न्यू जॉब प्रोफाइल सबसे इमर्जिंग कौन सी है, वो है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लाउड में शिफ्ट हो रहे हैं. एंड एज अ बिगिनर अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो आप डायरेक्टली नहीं बन सकते, उसके लिए प्रॉपर पाथ है. सो अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर तक पहुंचना है तो फर्स्ट आपको क्लाउड की नॉलेज होना चाहिए. सो बेसिकली 3 मेजर क्लाउड्स हैं, जीसीपी, Azure एंड AWS. ये 3 क्लाउड, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कोई भी एक क्लाउड पकड़ के. फर्दर इसके ऊपर आपको नॉलेज बिल्ड करना होगा. इनके भी सर्टिफिकेशंस होते हैं. अगर आप जाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में तो AZ 500 होता है, जीसीपी में उनके अलग है. फिर गूगल क्लाउड प्रैक्टिशनर है जो कि AWS का, उससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी AWS के बारे में. इसके ऊपर आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज बिल्ड करना है ताकि आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सके. बेसिकली क्लाउड क्या है? क्लाउड इज नथिंग बट जो कि आपका सिस्टम है वो इंटरनेट की हेल्प से कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं. अब इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं मतलब कोई भी अटैकर है वो भी आपके सिस्टम को इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है. एंड दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. वो तो वल्नरेबिलिटी भी जानते हैं, लूपहोल्स भी जानते हैं कि आप कहाँ गलती करेंगे, वो वहां से ही घुसेंगे. तो उसके बाद आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कैसे सिक्योर करना है सिस्टम्स को. एक जॉब प्रोफाइल हो गई क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर. फर्दर और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स है. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे सीआईडी का. हम बचपन में सीआईडी देखा करते थे, अब तो बंद हो गया बहुत अच्छा. हाँ, तो सीआईडी में डॉक्टर सालुंके थे, फोरेंसिक्स करते थे. तो सेम फोरेंसिक होता है डिजिटल वर्ल्ड में भी, उसे बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स. अगर आपको फोरेंसिक्स मतलब सीआईडी देखने में बहुत मजा आता था, स्पेशली सालुंके सर का काम देखने में मजा आता था. सेम इंडस्ट्री है साइबर सिक्योरिटी में भी, जिसे कहते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स. डिजिटल फोरेंसिक्स में आपको प्रॉपर ऐसे इंसिडेंट्स में हैंडल मतलब काम करना पड़ता है जहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, या तो किसी अटैकर ने, या तो बहुत सारी कंपनी, लेट्स से जैसे ताज का एग्जांपल लेते हैं हम. जब ताज में अटैक हुआ था बॉम्बे में, तब वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स थे, वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स खराब हो गए थे. जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनका सर्वर भी खराब हो गया. जितने भी डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर थे, ये प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई थी कि ये जितने भी आपके सीसीटीवी है इनकी रिकॉर्डिंग्स निकालिए. अब वो प्रॉपर डिस्टर्ब हो चुका है, जो सर्वर है वो टूट चुका है, बट स्टिल दे आर हैविंग सम स्टोरेज यूनिट. ओके, इन स्टोरेज यूनिट को वापस असेंबल करना, इनके अंदर से स्टोरेज निकालना, ये काम होता है एक प्रॉपर डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का. ओके, सो जो आपने फोरेंसिक्स का अच्छा एग्जांपल ऐड करा, मेरे को जैसे अभी भी इंडिया के अंदर जैसे डिजिटल इंडिया बन रहा है, सो देयर आर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस करा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ देयर इज़ अ जनरेशन गैप. सो हमारे पास एक जनरेशन तो ऐसी है जो यूथ की बात करें अगर, तो बिल्कुल यू नो फ्रॉम द बर्थ एक्चुअली वो डिजिटल गैजेट्स और उसमें यू नो इन्वॉल्व है पूरी की पूरी. दे आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक क्लाउड सिक्योरिटीज, इंटरनेट, ऑल अराउंड देम. फिर एक जनरेशन उससे पहली जो है, दैट इज़ लाइक दे आर नॉट सो. हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे हमारे बड़े हैं, वो भी अक्सर मतलब छोटे सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हो चुके हैं, बट उसकी वजह से एक दो चीज़ों का हमेशा सुनने को मिलता है कि हाँ ये स्कैम हो गया. बहुत सारे मार्केट में चीज़ें आती रहती हैं कि फ्रॉड टर्म्स, साइबर सिक्योरिटी. गवर्नमेंट के एंड से देखें तो दे हैव द डिपार्टमेंट्स ओवर देयर, बट वो इतना अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा. एंड वाई दीज स्कैम्स आर सो मच हैपनिंग. अभी लास्ट में भी इवन अभी मैं 2 या 3 दिन पहले भी एक न्यूज़ सुन रहा था. सो एक OTP टाइप का काइंड ऑफ स्कैम हो रहा था. सो लाइक कुछ ऐसे सजेशंस, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सजेशन आप देना चाहोगे, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इनटू साइबर सिक्योरिटी एंड यू आर इनटू डिफेंसिव पार्ट आल्सो. सो कंसीडरिंग 3 कैटेगरी, ओल्ड एज पीपल, हम, और जो न्यूबीज है जो अभी और आ रहे हैं, तो हमारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज है. साथ में जो अभी न्यू जनरेशन जितने भी जेनजीज वगैरह आ रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं. हमारे जो जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ये जाती है कि वो अवेयर नहीं है. सो बेसिक जो चीज है जो हमें उन्हें ट्रेन करना है
अवेयर करवाना है ताकि ये जितने भी स्कैम्स हैं ये कम हो सके। अवेयर कैसे करवा सकते हैं? सी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती है, साथ में आपके घर में ही जो लोग हैं वो आपके जितने भी आपके दादी दादा या जो भी है उनको आप बता सकते हैं कि अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी लिंक आए वो उसमें मत क्लिक कीजिए आप। अगर आपको कोई फोन कर रहा है, आप बहुत अच्छी वेब सीरीज है जिसकी जनतरा नाम की, जिसमें फिशिंग होती थी, वो कॉल करते हैं और आपको बोलते हैं कि ये ओटीपी आप बता दीजिए, हम आपको कुछ पैसे देंगे। आपको ये जितने भी फ्रॉड कॉल्स हैं इन पे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है। अगर कॉल उठाते भी हैं तो कोई भी आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो अवेयरनेस ट्रेनिंग है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के दिन में। और ये अवेयरनेस ट्रेनिंग हम कहाँ मतलब कैसे दे सकते हैं? हमें पता है तो हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमें घर में रह रहे हैं तो हमें अपने घर वालों को देना चाहिए। सो एक और चीज़ साथ में इसके साथ में इसी के साथ में होने लगती है कि कुछ र्यूमर्स भी फैलने लगते हैं मार्केट में, मतलब फॉरवर्डिंग मैसेजेस कि आपने इस नंबर से फ़ोन उठाया तो आपका बैलेंस कट जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है डिजिटली कि किसी का कॉल उठाने से ऐसा, लेट्स से कि मेरे पास एक रजिस्टर्ड नंबर है जो कि मेरे बैंक से भी रजिस्टर्ड है, तो क्या सिर्फ कॉल पिक करने से बैलेंस जा सकता है? नॉट पॉसिबल, क्यों? ये र्यूमर है, राइट? वन मोर थिंग इज कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और इंक्वायरीज आती रहती हैं इवन कि जैसे हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक एप्पल फ़ोन है। सो उन दोनों फ़ोन्स में काफ़ी सारे कंपैरिजन्स चलते रहते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा सिक्योर है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, मतलब मेरे को जो पर्सनली काफ़ी लोगों ने बोला है वो ये बोला है कि आईफोन ज़्यादा सेफ और सिक्योर है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉस्टली। डू यू ऑल्सो थिंक सो? वो डिवाइस इज सिक्योर क्योंकि हम लोग मतलब एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमने देखा है कि बड़े बड़े सर्वर और छोटे छोटे डिवाइसेस सब कुछ मतलब हैक हो सकते हैं। इवन आपने जो अभी सॉरी वॉच नहीं स्मार्ट, अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी होती तो स्मार्ट वॉच भी हैक हो सकती है। इवन आपके जो लाइट बल्ब्स हैं वो भी हैक हो सकते हैं। हैकिंग का मतलब क्या है? बेसिकली अब मैं एक छोटे समझने वाले डेफिनेशन दूंगा। हैकिंग मतलब अगर कोई डिवाइस है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं उस डिवाइस में कि वो अपनी फंक्शनैलिटी छोड़ के कुछ और करे, या जो फंक्शनैलिटी प्रॉपर कर रहा है वो रुक जाए, उस चीज से ना करे, डिस्टर्ब प्रॉपर। ओके, तो इसे बोलते हैं हैकिंग। तो बेसिकली अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि कोई एंड्रॉइड सिक्योर है कि आईफोन सिक्योर है, नहीं। क्यों? क्योंकि लेट्स से आप आईफोन में भी ब्राउजर चलाते हैं, करेक्ट? एंड्रॉइड में भी ब्राउजर चलाते हैं, right. अगर लेट्स से किसी ने मलेशियस लिंक भेजा, मलेशियस लिंक में एक कुकी नाम की चीज होती है, जैसे सपोज कीजिए आपकी मेमोरी है, right. ठीक है, आपने किसी का नाम सुना, आपने अपनी मेमोरी में रख लिया। सिमिलरली कुकी क्या होती है? मेमोरी रखता है कुकी। तो अगर आप ब्राउजर में जाते हैं, आप एक बार फेसबुक में लॉगिन करते हैं, तो आप जब वापस फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको वापस लॉगिन नहीं करना पड़ता, आपको लॉगिन पासवर्ड ईमेल एड्रेस नहीं डालना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपके कुकी में स्टोर्ड है। इन हियर अगर किसी भी तरह अटैकर ने वो कुकी को चुरा लिया तो या वो आईफोन हो या तो एंड्रॉइड हो, वो तो आपके पासवर्ड को जान ही जाएगा, कोई फर्क नहीं। Okay, now over to the last question. That is कि साइबर सिक्योरिटी जितना बूम कर रहा है उसके साथ साथ AI भी बूम कर रहा है और ऑब्वियसली इट्स गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन एवरी डोमेन। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी लाइक ऑटोमेशन काफ़ी सारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम लोग जो बेसिकली देखें तो हम AI और ऑटोमेशन को इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो कोडिंग टाइम है वो कम हो जाए और हमारे ऑटोमेटेड टूल्स हों जिससे हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें विद दोज टूल्स। बट एट द सेम टाइम those AI tools and even that जो कि हैकिंग के टर्म्स में अगर हम आए, नॉट फ्रॉम अ डिफेंडर एंड हैकिंग के टर्म पर आए, सो वो अटैक्स भी उसी AI से ऑटोमेट भी हो सकते हैं। जो कंटिन्यूस अटैकर्स मतलब लाइक दैट्स अ प्रोग्रेशन, राइट? AI जो इम्प्लीमेंट डिफेंडिंग साइड पर हो सकता है वो अटैकिंग साइड पर हो सकता है। सो अ काइंड ऑफ अ वॉर बिटवीन AI एंड साइबर सिक्योरिटी अगर हम अटैकिंग एंड पर देखें वहाँ पर।
सो क्या ये एंड एक तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता जाएगा थोड़े टाइम बाद, लाइक इट मे बी अ वेरी डेंजरस, इट मे लीड टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जैसे कि अभी हम अगर देखें एआई का इम्प्लीमेंटेशन, हम अभी के टाइम पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, वॉइस ऑथेंटिकेशन, काफ़ी सारे वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एआई एक्चुअली वी कैन जनरेट द वॉइस एज वेल, राइट, और वो यूज़ किया जा सकता है टू गेट इनटू द सिस्टम्स, टू गेट इनटू दोज थिंग्स। सो क्या एआई का इम्प्लीमेंटेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं बना हुआ है? ठीक है, इससे थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। अगर एआई को कंपेयर किया जा रहा है, मतलब एआई को ऐसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में मशीन रेवोल्यूशन आया था। मशीन रेवोल्यूशन बोल रहा था कि ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं उनकी जॉब चली जाएगी मशीन्स की वजह से। बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। इवन जो ह्यूमन बीइंग्स जॉब करते थे वो जॉब कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट द रोल हैज चेंज्ड। मतलब जो इंसान पहले एक काम करता था उसको काम करने में 10 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में हो जाता है, बट ऑपरेशंस उनके चेंज हो गए। सिमिलरली एआई थ्रेट नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए, एआई हेल्पफुल है इवन साइबर सिक्योरिटी के लिए एज अ डिफेंडिंग साइड और एज अ अटैकिंग साइड भी। इफ यू आर कंसीडरिंग कि अटैक करने से सिर्फ हैकर्स अटैक करना है तो नो। सी, मैंने बताया था 2 फील्ड्स है, रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग। ब्लू टीमिंग तो प्रॉपर डिफेंड करती है, बट रेड टीमिंग अटैक करती क्यों है? अटैक इसीलिए करती है ताकि वल्नरेबिलिटीज मिल सके हमें, ताकि हमें लूप होल्स मिल सके, ताकि हम जान सके कि कहाँ पे कोड खराब लिखा गया है, जिसकी हेल्प से कोई भी अटैकर हमारे सिस्टम में, हमारे घर के अंदर घुस सकता है। तो ये चीज एआई की हेल्प से हम एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एज अ रेड टीमर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे घर के अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं वो जान सके हम। साथ में एआई आने से एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब खत्म नहीं होगा, वो बस चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? पहले हम सारी कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं जानते थे, बट विद द हेल्प ऑफ ऑल द एआई टूल्स नाउ वी हैव द ऑप्शन कि हम एआई टूल्स के पास जाएं और हम जाने कि ओके ये हमारे पास कोड है, आप प्लीज बताइए ये कोड कर क्या रहा है। एआई टूल्स विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू दैट ओके दिस इज द पर्पस ऑफ दिस कोड एंड फर्दर यू कैन टेक एक्शन ऑन इट। सो एआई टूल्स थ्रेट नहीं है साइबर सिक्योरिटी के, इवन ये ज्यादा अच्छी चीज है साइबर सिक्योरिटी के लिए। दोनों के पर्सपेक्टिव से, रेड टीमिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप बोल रहे हैं कि अटैक करता है, सी हाँ बिल्कुल अटैक करता है, अच्छी बात है अटैक करता है, जिसकी हेल्प से अगर हम अटैक कर रहे हैं तो इवन हमें भी तो पता चल रहा है कि वल्नरेबिलिटीज कहाँ है। जैसे ही हमें पता चलेगा कि ओके इस चीज में वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे हमारे घर में कमजोरी है, हम वहाँ पे लॉक लगा सकते हैं या सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर सकते हैं। सिंपल। Okay, wonderful. So AI is not at least जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में ये होगा माइंड में कि AI जॉब्स का संकट क्रिएट करने वाला है, सो ऐसा कुछ नहीं है फाइनली। ओके जयंत, इट्स रियली गुड टू टॉक टू यू। आई होप जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती रहती हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर मिला होगा आज, एंड I believe they will be motivated actually to get into this cybersecurity and AI domains as well. There are lots of job profiles and we have handsome salaries as well, according to Jayant, right? So it depends on the skill set, but yes, there are a lot of scope over there. Okay, thank you viewers, thank you for your time. We will be soon again with a good experienced professional again with a different domain over there. Thank you Jayant, thank you for your time.